बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट्स, एक और वीडियो के साथ हम हाज़िर हैं। इस वीडियो में एक्सरसाइज 11.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 और 7 से लेके 14 तक 2 लेक्चर्स हमने बनाए हैं। वो वीडियोस आपने उम्मीद है देख ली होंगी। अब जो नेक्स्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के रहते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें क्या क्या मेथड्स की ज़रूरत है। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 16। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, अब तक हमने जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें या तो सिंगल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की इक्वेशंस थी या तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की इक्वेशंस थी। अब जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की इक्वेशंस हैं। इससे आगे जो क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 वगैरह, उसमें और ज़्यादा डेरिवेटिव्स की इक्वेशंस होंगी, यानी कि फोर्थ ऑर्डर और फिफ्थ ऑर्डर वगैरह भी इस्तेमाल होंगे। तो थोड़ा मुश्किल होता जाएगा। देखते हैं आगे की आगे मुश्किल क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की इक्वेशन है। अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की इक्वेशन है तो 3 इनिशियल वैल्यूज़ दी होंगी। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की क्या इक्वेशन है जी? वाई क्यूब डी क्यूब वाई ओवर डी टी क्यूब, यानी कि थर्ड डेरिवेटिव ऑफ वाई माइनस 4 इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस 6 इंटू सिंपल वाई इज़ इक्वल टू टी ई रेज टू पावर टी। ये हमारी इक्वेशन है जी। इसको हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सो the given equation is this which we named equation number I. Now we take the Laplace transformation of equation number I on both sides. तो Laplace transformation of third derivative minus 4 into Laplace transformation of second derivative plus Laplace transformation of first derivative plus Laplace transformation 6 into Laplace transformation of a simple y of t is equal to the Laplace transformation of right hand side. So now we will apply the differentiation formulas for third derivative, second derivative and simple derivatives on either side, and on the right hand side we will apply the first shifting property or any other property to solve the Laplace transformation. So students, as we studied earlier the formulas for the Laplace transformation of the differentiation formulas, the third derivative Laplace transformation is as the s cube y of s minus s square y of 0 minus s y dash of 0 minus y double dash of 0. This is the formula for the Laplace transformation of third derivative, and similarly the Laplace transformation for the second derivative and the simple derivative are written as this. Plus 6 into y of s is the Laplace transformation of simple y of t is equal to, we use the property of the Laplace transformation in the table, that if any function is multiplied with t, if any function multiplied with t, here it is, if any function which multiplied with t, then we can have the Laplace transformation in this form, which is this minus 1 raised to power 1 first derivative of Laplace transformation of the multiplied function, which is e power t. The Laplace transformation of e power t is 1 over s minus 1. So we can get the Laplace transformation whole of this term as minus 1 raised to power 1 d by ds, and for the first derivative of the Laplace transformation e power t, which is 1 over s minus t. After solving this and applying the initial values, the initial value of y of 0 is equal to 0 and y dash of 0 is also 0, but y double dash of 0 is 1. So we apply these initial values in every term in which we needed. So we solve this and we get the following result.
that is y s cube y of s minus 4s square y of s plus s y of s plus 6y of s minus 1 is equal to this term, which is the derivative of 1 over s minus 1. Derivative of 1 minus s over 1 minus 1, we apply the power rule, s minus 1 raised to power minus 1 after it inverted to the numerator, s minus 1 raised to power minus 1, and the power rule says that minus 1 multiplied in s minus 1 raised to power minus 1 and minus 1, which is minus 2, and after that which we vanish the term minus 1 minus 2, so it becomes minus 1 divided by s minus 1 whole square. So we get the term, we will get the expression for the y of s. We take common y of s from everywhere and divide the term with y of s cube minus 4s square plus s plus 6, divide to the other side by taking the LCM of the other side, right hand side. After that we get the expression for the y of s, which we can factorize. When we factorize this by synthetic division, this can be factorized by synthetic division. After synthetic division we factorize the s square minus 5s plus 6, the term multiplied beneath becomes s plus 1, s minus 2 and s minus 3. We can divide on the other side and get the factorized form of y of s. We will take partial fraction before taking the inverse Laplace transformation. So students, after getting the partial fraction, हमारे पास a b c d e की वैल्यूज़ जो बन जाएंगी, a इज़ इक्वल टू 1/4, b इज़ इक्वल टू 1/4, c इज़ इक्वल टू 5/48 एंड d इज़ इक्वल टू -2/3 और e इज़ इक्वल टू 5/16. उन सबको इन a b c d e की जगह हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया. फिर हमारा इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेना ईजी हो जाएगा. तो इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दोनों साइड्स पर ले लिया. तो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद हमें इन्वर्स लैप्लास की वैल्यूज़ मिलना बहुत आसान हो जाएंगी. इन्वर्स लैप्लास ऑफ 1 over s minus 1 इज़ इक्वल टू e पावर t. इन्वर्स लैप्लास ऑफ 1 over s minus 1 होल स्क्वायर इज़ बाई दी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. ठीक है जी, बाई दी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इट हैज़ द रिजल्ट t into e पावर t एंड आल्सो दिस इज़ e पावर माइनस टी. इसका इन्वर्स लैप्लास e पावर 2t, इसका इन्वर्स लैप्लास e पावर 3t हो जाएगा. तो यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 है. So students, as the question number 16, you can also solve question number 17 which is same as question number 16. वो भी बिल्कुल आसान है और question number 16 की तरह आप उसको solve कर सकते हो. question number 18 जो है वो इसमें फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहे थे, वो मैंने सॉल्व कर दिया है. तो ये देखें, क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 में उसने कहा है कि डबल डेरिवेटिव प्लस 6 इंटू सिंगल डेरिवेटिव प्लस 7 होल स्क्वायर ऑफ वाई. क्योंकि फोर्थ डेरिवेटिव, ये देखें स्क्वायर है सबका, तो फोर्थ डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है. तो इसमें 1 2 3 एंड 4 इनिशियल वैल्यूज़ दी हुई हैं. तो इसको हमने पहले सिंप्लीफाई कर लेना है इस सारी इक्वेशन को. वो कैसे? तो इसको हम करेंगे स्क्वायर, इसका खोल लेंगे. स्क्वायर खोलने के बाद ये देखें, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट सेकंड प्लस 2 इंटू सेकंड थर्ड प्लस 2 इंटू फर्स्ट थर्ड. ठीक है जी, ये फार्मूला होता है स्क्वायर 3 टर्म्स के स्क्वायर का को खोलने का. तो वो स्क्वायर खोलने के बाद हमारे पास जो सिंप्लीफाई करने के बाद टर्म बच जाएगी, वो बच जाएगी ये. ठीक है जी, ये स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव का स्क्वायर लिया तो फोर्थ डेरिवेटिव हो गया प्लस 36 इंटू सिंपल डेरिवेटिव का स्क्वायर लिया तो स्क्वायर हो गया प्लस 49 प्लस अप टू ये सारी टर्म्स जो बन गई. अब y को अंदर मल्टीप्लाई कर देना. तो y हर एक के साथ जब जाएगा डेरिवेटिव के साथ, तो हमारे पास टर्म बन जाएगी ये वाली. ठीक है जी, तो इसमें अब सिंप्लीफाई करने के बाद इसको इक्वेशन नंबर आई बोल दिया. इक्वेशन नंबर आई जो है इसका अब हमने लेना है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब लिया तो फोर्थ डेरिवेटिव का लैप्लास प्लस 12 इंटू थर्ड डेरिवेटिव का प्लस 50 इंटू सेकंड डेरिवेटिव का प्लस 84 इंटू सिंपल डेरिवेटिव का प्लस 49 इंटू वाई का इज़ इक्वल टू 0.
तो इस पर लगा देंगे फार्मूलाइज सभी के, कौन से, जो फोर्थ डेरिवेटिव वाला प्लस होता है वो ये होता है, मैं आपको बता भी दूं, एस की पावर एस रेज टू पावर 4 वाई ऑफ एस माइनस एस रेज टू पावर 3 वाई ऑफ 0 प्लस एस रेज टू पावर 2 वाई डैश ऑफ वाई एस इंटू वाई डबल डैश ऑफ माइनस एस ट्रिपल डैश ऑफ वाई ट्रिपल डैश ऑफ 0। ये फोर्थ डेरिवेटिव के लिए प्लस का फार्मूला होता है। इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव के लिए प्लस का, सेकंड डेरिवेटिव के और सिंपल डेरिवेटिव के लिए प्लस का फार्मूलाज लगाने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन ये बन जाएगी। नेक्स्ट इस पर हमने इनिशियल वैल्यूज़ अप्लाई कर देनी है। जैसा कि हम जानते हैं इनिशियल वैल्यू दी है वाई ऑफ 0 0 है, वाई डैश ऑफ 0 भी 0 है, वाई डबल डैश ऑफ 0 भी 0 है और वाई ट्रिपल डैश ऑफ 0 वो है -4 × 2 स्क्वायर रूट। बाकी सभी में भी इनिशियल वैल्यूज़ अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन बच जाएगी वो ये। अब इसको हमने इसमें से हमने वाई ऑफ एस एक तरफ वाई ऑफ एस कॉमन ले लेना है। वाई ऑफ एस कॉमन लेने के बाद ये जो टर्म है -4 × 2 स्क्वायर रूट वो दूसरी तरफ चले जाएगी क्योंकि इसमें वाई ऑफ एस नहीं है। अब इस सारी टर्म को हमने करना है फैक्टराइज करने की कोशिश करनी है। तो स्टूडेंट्स जब हमने देखा तो ये वाली सारी जो टर्म है ये बन रही है स्क्वायर किसी चीज़ का। किस चीज़ का स्क्वायर बन रही है? ये देखें, ये बन रही है एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 7 का होल स्क्वायर बन रही है। तो इसको हमने उधर जाके डिवाइड कर दिया तो हमारे पास टर्म ये बन गई। अब इनका इन्वर्स लैप्लास फाइंड आउट करने के लिए हमें कन्वोल्यूशन थ्योरम को इस्तेमाल करना पड़ेगा। कन्वोल्यूशन थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के जो लेक्चर्स हैं उनमें मैंने कन्वोल्यूशन थ्योरम को बताया हुआ है। तो इसको अगर मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं 1/this इंटू 1/this तो वो दो एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस बन सकते हैं। 1/this इंटू 1/this इट मीन्स दैट एफ ऑफ एस ये है, जी ऑफ एस ये चीज़ है। क्योंकि स्क्वायर है ना तो इसको दो चीज़ों में डिवाइड कर सकता हूँ। इसी टर्म को दो मरतबा लिख सकता हूँ तो 1/this एफ ऑफ एस 1/s² प्लस 6s प्लस 7 वो जी ऑफ एस के इक्वल आ सकता है। तो इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे, वो इसी की भी वही होगी। तो क्योंकि दोनों सेम है तो एफ ऑफ एस की इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए इसको नीचे फैक्टराइज करना पड़ेगा, कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा। कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए मैंने 7 को तोड़ लिया, 9 - 2 लिख लिया। ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं वो s + 3 का होल स्क्वायर बन रही है। माइनस जो 2 है उसको 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये एक फार्मूला बन गया साइन हाइपरबोलिक का। साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला बनने से पहले इस पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग रही है क्योंकि s की जगह s + 3 है। तो जहाँ पर s की जगह s + 3 हो तो उसकी इन्वर्स लैप्लास होती है e पावर -3t इंटू इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सादा s के साथ, यानी कि 2 स्क्वायर रूट ओवर s स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो s की जगह s + 3 था, सिंपल s स्क्वायर का हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2 स्क्वायर रूट इंटू t। तो ये इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गई हमारे f ऑफ s की। यही हमारे g ऑफ s की इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगी, सिंपल वही होगी। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम के मुताबिक इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर दें तो उसकी इन्वर्स लैप्लास होगी इनका कन्वोल्यूशन। ठीक है जी, कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन ये थी। तो इसमें अब हमने अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। एफ ऑफ टी की वैल्यू थी हमारे पास ये जो हम निकाल चुके हैं वो इधर पुट कर देनी है वेरिएबल चेंज करके u, और एफ ऑफ जी ऑफ टी की वैल्यू भी यही थी हमारे पास, वो कर देनी है पुट t - u करके। तो डेफिनेशन में इसकी वैल्यूज़ को पुट किया। अब हमने इसका करना है इंटीग्रेशन को सॉल्व। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से पहले हमने वेरिएबल जो थे वो कांस्टेंट थे वो बाहर ले आए हैं, और ये जो ई पार थी इसको ई पार इसके साथ जब हमने सॉल्व किया तो ई पार 2u कट आउट हो गए और हमारे पास रह गया ई पार -3t, और साथ ये दो साइन के फंक्शन साइन हाइपरबोलिक 2 स्क्वायर रूट ऑफ u एंड साइन हाइपरबोलिक 2 स्क्वायर रूट t - u ऑफ du। लेफ़्ट हैंड साइड पर जब हमने एफ ऑफ एस और एफ ऑफ जी की वैल्यूज़ पुट आउट की तो वो ये आ गई। राइट हैंड साइड पे हमने उसको 1/4 इंटू ये देखें जी, ये 1/2 था। ठीक है जी, तो अपनी तरफ से 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया क्योंकि दो साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको हमने समीशन की फॉर्म में लिखना है। तो ये देखें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो, ये 1/4 हो गया, अंदर 2 से 1 मल्टीप्लाई करवा दिया तो 2 इंटू साइन ए मल्टीप्लाइड बाय साइन बी वाला फार्मूला बन गया। दो साइंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका फार्मूला होता है cos a + b - cos a - b। ठीक है जी,
तो इसके फार्मूला को लगा दिया हमने, तो ये दो समीशन की फॉर्म में या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आ गए। इनके इंटीग्रल को अलग-अलग कर लेना है हमने। इंटीग्रल को अलग-अलग किया तो ये ई पार जो 3t है दोनों इंटीग्रल्स में से बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इंटीग्रेशन u के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ई पार 3t बाहर आ जाएगा। अंदर बच जाएगा कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट ऑफ t एंड कॉज हाइपरबोलिक 2 × 2 u - 2 स्क्वायर रूट ऑफ t। तो इनकी इंटीग्रेशन हमें आती है कॉज की हाइपरबोलिक की कॉज हाइपरबोलिक ही होती है। ठीक है जी। जब इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे माइनस e पार 3t/4 इंटू साइन हाइपरबोलिक की साइन हाइपरबोलिक ही होती है। क्योंकि ये कॉज हाइपरबोलिक 2t था, हम u के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये एज अ कांस्टेंट डील होगा, बाहर आ जाएगा। अंदर बच जाएगा 1 की इंटीग्रेशन होती है u के ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे। ये कांस्टेंट डील नहीं होगा क्योंकि इसमें u है हमारे पास, u इसमें शामिल है, तो इसको हम बाहर नहीं ले जा सकते। तो इसके इंटीग्रेशन एज विद रिस्पेक्ट टू फार्मूलाज करेंगे। कॉज हाइपरबोलिक की साइन हाइपरबोलिक होती है, तो ये इसकी इंटीग्रेशन ये आ गई। तो इस पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे t-0, इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये फंक्शन बन जाएगा। इसको हमने कर लेना है सिंप्लीफाई। ये देखें जी, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये टर्म बन जाती है। ये 2 मरतबा था तो ये 2 हो गया। 2 के ये नीचे वाले 2 के साथ वो 2 कट आउट हो गया। इसके बाद दोनों में से 2 × 2 स्क्वायर रूट कॉमन लेके हमने अपना रिक्वायर्ड सोल्यूशन बना लेना है, जो कि ये चीज़ बनती। ठीक है जी। अब हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या था? लेफ़्ट हैंड साइड पे बन रहा था ये, लेकिन हमें किसकी चाहिए था? हमें चाहिए था ये देखें इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में ए में हमें इसकी इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, जो वही हमारा y/t बनेगा ना। इसकी इन्वर्स लैप्लास दोनों तरफ लेंगे तो हमें हासिल हुआ, क्या हासिल हुआ था? हमें हासिल हुआ था इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोनों तरफ 4 × 2 स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 मैंने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 19 जो वह सेम बिल्कुल इसी तरीके से, उसमें 4th ऑर्डर डेरिवेटिव की इक्वेशन है, वो भी आपने सेम इसी तरीके से सॉल्व कर लेनी है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? ये है जी t डबल डेरिवेटिव ऑफ y प्लस t-1 इंटू सिंगल डेरिवेटिव ऑफ y माइनस y इज़ इक्वल टू 0। क्योंकि इसमें डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो इसमें दो इनिशियल वैल्यूज़ दी होंगी। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। गिवन इक्वेशन हमारे पास ये है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेनी होती है दोनों साइड्स पे। तो दोनों साइड्स पे ये देखें, इधर भी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले ली और राइट हैंड साइड पे 0 था, उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ले सकते जी। तो स्टूडेंट्स, इसमें ये क्या है? ये देखें, ये इक्वेशन है हमारे पास जिसका हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दोनों तरफ ले लिया। अब इस पर कौन से फार्मूलाइज लगेंगे? ये देखें, किसी फंक्शन के साथ अगर t मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उस पर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह इस फंक्शन के साथ t मल्टीप्लाई हो रहा था, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते थे। ये वाला जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अकेला सिंगल डेरिवेटिव का था, उस पर डेरिवेटिव का फार्मूला लगा दिया। y/t का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन था, वो y/s आ गया। तो ये वाला फार्मूला है जिस पर हमने किसी फंक्शन के साथ t⁻n अप्लाई हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होती है -1⁻n nth डेरिवेटिव ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f/t। तो यही फार्मूला हमने इधर अप्लाई किया और इधर अप्लाई किया, तो वो देखें -1⁻1 फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि t⁻1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 आएगा। -1⁻1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साथ वाले फंक्शन का, प्लस -1⁻1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साथ वाले फंक्शन की लैप्लास का। तो इसी तरह ये दोनों हमने खोल देने हैं। तो ये जब हमने देखा तो हमारे पास बन गया, ये देखिए, फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ये आ गया। इसी तरह लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ गया। इसका सेम एज इट इज़ ये वही। अब इसके लेने हैं हमने इनिशियल वैल्यूज़ अप्लाई कर देनी है। ये इनिशियल वैल्यू हमें पता है कि इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है? y/0 इज़ इक्वल टू 5 है और y'0 इज़ इक्वल टू y'0 ही लिख दिया हमने। इसी तरह y/0 इज़ इक्वल टू 5, y/0 इज़ इक्वल टू 5।
अच्छा जी, नेक्स्ट इसके बाद हमने ले लेना है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेने के बाद ये देखें, इसका डेरिवेटिव जब लिया तो ये हो जाना है प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ठीक है जी, इस पर क्योंकि ये दो टर्म्स हैं तो इस पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस ये 5 इंटू एस का डेरिवेटिव 1 प्लस बाई डैश ऑफ ज़ीरो, क्योंकि इसमें कोई एस नहीं है तो इसका डेरिवेटिव वैसे ही ज़ीरो हो जाएगा। माइनस सिमिलरली इसका डेरिवेटिव ले लेना है, इस पर भी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। -5 का डेरिवेटिव 0 माइनस सिमिलरली ये एज इट इज़ खोल देंगे इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसमें से हमने दो टर्म्स बन गई हमारे पास, कौन सी, ये देखें सिंगल डेरिवेटिव और सिंपल वाई ऑफ एस वाली टर्म्स, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई वाई ऑफ एस में। ठीक है जी, वाई ऑफ एस इसको हम कर देंगे इस फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसके साथ डिवाइड करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद ये देखें विच इज़ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई ऑफ एस में ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो इसको अब हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने पीछे डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा होगा, तो इनकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते होते हैं। जो वाई ऑफ एस के साथ इधर टर्म होती है उसको ई की पावर में इंटीग्रेट कर देते होते। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर दी। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद इसको ये देखें, इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन है इसको इसमें पुट आउट कर दिया, उसकी इंटीग्रेशन आसान होगी। वो क्या हो गया, नेचुरल लॉग ऑफ एस प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एस प्लस 1, इसकी अलग इंटीग्रेशन कर दी। तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करवा पावर में चला गया नेचुरल लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ दिस, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक दोनों। तो नेचुरल लॉग ऑफ एस स्क्वायर और एस प्लस 1, तो ई की पावर और नेचुरल लॉग आपस में कट के इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ये देखें जी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या थी, ये देखें इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बनी थी ये वाली। ठीक है, जो वाई ऑफ एस में एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी, हमने फाइंड आउट करना है वाई ऑफ एस के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करवा दिया तो वो डेरिवेटिव बन गया। इसी तरह राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करवा दिया, वो सॉल्व हो गया। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। अब दोनों तरफ जब इंटीग्रेट किया तो इसकी ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कट आउट हो गए। वाई ऑफ एस इंटू एस स्क्वायर एस प्लस 1 बच गया। इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है एस स्क्वायर ओवर 2 होती है, वो सॉल्व होकर प्लस सी आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारी वाई ऑफ एस के लिए टर्म बन गई है, एक वाई ऑफ एस के लिए जो टर्म बन गई है उसमें हमारे पास सी है, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। ये जो हमारे पास है सी के साथ, इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर लेनी है ताकि हमारी इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेनी आसान हो जाए। जब हमने पार्शियल फ्रैक्शन की तो वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, ए बी सी तीनों को। इसको इसमें हमारी इक्वेशन में 3 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 3 में पुट आउट करने के बाद ये जो हमारी वाई ऑफ एस की एक्सप्रेशन बन गई, तो वाई ऑफ एस की एक्सप्रेशन को हमने इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है ताकि हम वाई ऑफ टी फाइंड आउट कर ले अपना सोल्यूशन। इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब हमने ली तो हमारे पास सोल्यूशन बन गया, ये देखें वाई ऑफ ये जो है इन्वर्स लेप्लास इसकी होती है सी प्लस 5 बाहर आ जाएगा ई पावर माइनस टी। इसी तरह 1 ओवर एस की 1 होती है, 1 ओवर एस स्क्वायर की टी होती है। तो सिमिलरली अगर हम अप्लाई करें इन्फिनिटी वाई, इसमें टी की जगह इन्फिनिटी पुट करें तो वाई ऑफ टी वाई की वैल्यू जो आती है वो 0 आती है, उधर से हमें सी 0 मिल जाएगा। यानी कि जब सी 0 मिलेगा तो हमारा जो जनरल सोल्यूशन हमारा जनरल सोल्यूशन ये था, पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास फिर मिल जाएगा वाई ऑफ टी इज इक्वल टू 5 ई रेज़्ड टू पावर माइनस टी। ये जी आंसर था क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है, दो इक्वेशंस का सिस्टम, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है जी कि उसने एक सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। दो इक्वेशंस का एक सिस्टम है जिसमें y और x दो वेरिएबल्स हैं, हमें दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। उसके लिए ये देखें, क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव x का फाइंड हो रहा था तो एक इनिशियल कंडीशन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y का तो एक इनिशियल कंडीशन उसके हिसाब से। अब
हमने क्या करना है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दोनों का ले लेना है। ये देखें जी, दोनों का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया। इसको मैंने इसी तरह बंडल्स की सूरत में इसलिए बनाया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में ये देखें, हमने इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा कि हमें वाई वाले सिस्टम की, वाई वाले वेरिएबल की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वाई ऑफ एस आती थी, इसी तरह एक्स वाले डेरिवेटिव की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल एस ऑफ एक्स ऑफ एस आएगी। तो उसके मुताबिक जब हमने डिफरेंशिएशन फार्मूला खोला तो यहाँ तक ये आ गया। इसी तरह ये डेरिवेटिव लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस कैपिटल एक्स ऑफ एस माइनस ये y ऑफ t है, तो y ऑफ t की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन y ऑफ s आ गई। सिमिलरली y ऑफ s वाले की खोल के इसको हमने इनिशियल वैल्यूज़ अप्लाई कर देनी है। x ऑफ 0 के लिए 2 और y ऑफ 0 के लिए 1, वो हमने इधर अप्लाई कर दी। इन दोनों को हमने अब करना है सिंप्लीफाई करने के बाद ये देखें, हमने इसको एक सिस्टम की शक्ल दे दी। सिस्टम की शक्ल देने के बाद हमने इसको अब करना है सॉल्व। कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो उसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो मैंने यहाँ पर कौन सा मेथड अडॉप्ट किया, वो किया क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल आपने पढ़ा हुआ है। क्रैमर्स रूल ये होता है, क्रैमर रूल बड़ा आसान है। क्रैमर रूल से इसको सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास जो बन जाएगी वैल्यू वो ये बन जाएगी। इसको आप कीजिए क्रैमर रूल के तहत। आप क्रैमर रूल को भी करने के दो तरीके होते हैं। अगर आपने एक्स ऑफ एस और वाई ऑफ एस की वैल्यूज़ डायरेक्ट निकालनी है तो वो डायरेक्ट निकाल लीजिए, इस मेथड से निकालनी है तो इस मेथड से निकाल लीजिए। और निकालने के बाद ये देखें, हमारे पास जो बन जाएगी वाई एक्स ऑफ एस की वैल्यू ये बन जाएगी, वाई ऑफ एस की वैल्यू ये बन जाएगी। अब जो एक्स ऑफ एस है इसकी हमने अलहदा पार्शियल फ्रैक्शन कर लेनी है ताकि इन्वर्स लेप्लास लेना आसान हो जाए। वाई ऑफ एस की जो है अलहदा पार्शियल फ्रैक्शन कर लेनी है ताकि इसका भी इन्वर्स लेप्लास लेना आसान हो जाए। इन दोनों को हमने जब हमने वाई ऑफ एस ऑफ एक्स में पुट किया तो हमारे पास ये और ये इन्वर्स लेप्लास दोनों की इन्वर्स लेप्लास जब ली तो वो बहुत आसान हो गई। इसकी इन्वर्स लेप्लास होती है ई पार -2t, इसकी इन्वर्स लेप्लास ई पार 60 और इसके बाद सिमिलरली वाई ऑफ एस की। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 21 का। तो स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग द सेम प्रोसीजर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद जो 22, 3 और 4 और 5 हैं वो आप सेम इसी प्रोसीजर के साथ आप सॉल्व आउट कर सकते हो। कोई मुश्किल नहीं है उसमें, बहुत आसान है। सेम इसी प्रोसीजर के साथ वही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस दिए हुए हैं और उनके साथ उसकी इनिशियल वैल्यूज़ भी दी हुई हैं, तो वो आप बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया है। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको सारा लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के जितने भी लेक्चर्स हैं वो समझ आ गए होंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो पिछली वीडियोज़ भी देखें, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वाले लेक्चर्स और इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वाले लेक्चर्स। और इसके बाद हमने ये सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व किया, इसको भी देखें। और अगर आपको ये वीडियोज़ सारी पसंद आ जाएँ तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको अच्छी वीडियोज़ मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।